in a interesting subject of mathematics. Dear, today we will discuss about the mathematics of class 8, in which chapter number 10 visualizing solid shape. एंड दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस चैप्टर नंबर 10 में विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में हम सीखते हैं कुछ नई चीजें। सो लेट अस स्टार्ट। सो हियर इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज पॉलीगॉन। व्हाट इज पॉलीगॉन? A polygon is a closed curve formed by the line segment. For example, triangles, quadrilaterals, etc. Means polygons वो ज्योमेट्रिकल कर्व होते हैं जो लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होते हैं। तो ये इसमें आपके जो एग्जांपल्स हैं वो ट्राइंगल्स हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, all the geometrical shapes are bounded by the line segments. So all these geometrical shapes are known as polygons. Now next things, regular polygon. What do you mean by regular polygon? A regular polygon is a polygon whose all sides and all angles are equal. For example, equilateral triangle, square, regular pentagon. Regular means whose all sides and all angles are equal. So dear, now let us another thing, polyhedron. What do you mean by polyhedron? So this is the new things. A solid shape bounded by polygons is called a polyhedron. समझ गए? कोई भी सॉलिड जो पॉलीगॉन से बाउंडेड होता है, पॉलीगॉन्स में आपकी ट्राइंगल्स हो सकते हैं, स्क्वायर्स हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, पेंटागन हो सकते हैं, पैरेललोग्राम्स भी हो सकते हैं, हेक्सागन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ऐसे सभी सॉलिड्स जो पॉलीगॉन्स से बाउंडेड होते हैं हम उन्हें पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर पॉलीहेड्रॉन। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहेड्रॉन। यू कैन सी दैट all the sides are bounded by rectangles and top and base is regular hexagon. So this is a polyhedron. Second one, this is a cone. This is also a polygon. And this is a cube. You can see that this is also a polyhedron. And this is another figure that is you can see that this is also a polyhedron. And now this one is the also known as polyhedron. So I think that the concept of polyhedron has been clear. Okay, now moving for next things, that is polyhedra. What do you mean by polyhedra? The word polyhedra is the plural of the word polyhedron. तो polyhedron अभी आपने जो जाना उसी का ये प्लूरल होता है पॉलीहेड्रा, जिसमें बहुत सारे पॉलीहेड्रॉन आ जाएं उसी को हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन. Okay, now regular polyhedron. What do you mean by regular polyhedron? A polyhedron is said to be a regular if its faces are made up of irregular polygons and the same number of faces meet at each vertex. Okay, तो आप समझ गए होंगे रेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं. वो सभी पॉलीहेड्रॉन जो रेगुलर पॉलीगॉन से मिलकर बनाए जाते हैं और जिसके सभी फेस एक कॉमन वर्टेक्स पर मिलते हैं. ठीक है, सो लेट अस हियर इज द एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. यू कैन सी दैट क्यूब. दिस इज ए एग्जांपल ऑफ रेगुलर polyhedron because all faces are square and all faces are joined to each other.
Now dear, moving for next thing, this is also interesting things, that what do you mean by prism? Prism क्या होता है? A prism is a solid whose sides, faces are parallelograms and whose ends are congruent parallel rectilinear figure. समझ गए होंगे कि प्रिज्म क्या होता है, जिसके सभी जो साइड्स होते हैं वो पैरेललोग्राम्स होते हैं और टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट फर्स्ट वन आई वांट टू टेल यू दैट रेगुलर प्रिज्म. व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर प्रिज्म? ए प्रिज्म इज कॉल्ड ए रेगुलर प्रिज्म इफ एंड्स आर रेगुलर पॉलीगॉन. अगर उसके टॉप और बॉटम रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं तो वो रेगुलर प्रिज्म होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए क्यूब एंड क्यूब इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर प्रिज्म. ओके, नाउ दिस इज ए रेक्टेंगल, दिस इज नॉट रेगुलर but this is a prism because top and bottom are the congruent polygons and other faces are parallelograms, that is rectangle. Okay, so these are the examples of prism. Now another most important things, this is a also example of prism because top and bottom is a regular polygon, that is equilateral triangle, and other faces are rectangles, otherwise this is square also. तो ये स्क्वायर हो सकते हैं और रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं. तो आपको ये जो एग्जांपल है दिस इज ए प्रिज्म. ओके, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट थिंग्स दैट यस pyramid. What do you mean by pyramids? A pyramid is a polyhedron whose base is a polygon of any number of sides and whose other faces are triangles with a common vertex. तो यहाँ पे स्पेशलिटी आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो टॉप और जो बेस है वो बेस कितने भी साइड का पॉलीगॉन्स हो सकता है. ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, हेप्टागन भी हो सकता है. क्या चीज, किस चीज की मैं बात कर रहा हूं? यस ऑफ कोर्स, मैं बात कर रहा हूं बेस की. बेस में कोई भी नंबर ऑफ टाइप का पॉलीगॉन हो सकता है बट अदर फेसेस आर ऑलवेज ट्रायंगल्स एंड दे मीट at a common vertex, they meet at a common point. For example, you can see that these are the examples of pyramids. तो आप देख रहे हैं इसका बेस क्या है, इसका बेस आपका रेक्टेंगल है और बाकी का जो साइड्स हैं वो ट्रायंगल हैं और ट्रायंगल सभी ट्रायंगल का जो कॉमन वर्टेक्स है वो आप देख सकते हैं कहां पर मीट कर रहा है. दिस इज द कॉमन वर्टेक्स. ओके, सभी ट्रायंगल एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसको हम कॉमन वर्टेक्स कहते हैं. नाउ अनदर एग्जांपल, दिस इज आल्सो ए पिरामिड एंड हियर इज बेस इज ट्रायंगल एंड अदर फेसेस आर आल्सो triangles. Okay, now dear, moving for next thing, what do you mean by regular pyramids? A pyramid is said to be a regular pyramid if its base is a regular figure, that is all sides of its beats are equal. तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि पिरामिड में टॉप नहीं होता है. टॉप क्या होता है? वर्टेक्स होता है. लेकिन जो बेस होता है, बेस क्या होता है? कोई भी नंबर ऑफ साइड का पॉलीगॉन होगा. ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है. बट if all sides are base is equal, then that pyramid is known as regular pyramid. तो एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो को और देखते रहिए. Now dear, here is next thing that Euler formula. So what do you mean by Euler's formula? Yes, of course, this formula is known as Euler formula. That is f plus b minus e equal to 2, where f stands for number of faces, v stands for number of vertices and e stands for number of edges.
This relationship is called Euler formula. So dear, now moving for next thing, enjoy the video. उस डेफिनेशन को हम लोग पहले जाने की इसकी डेफिनेशन इसको डिफाइन कैसे करेंगे। पॉलीहेड्रॉन, तो पॉलीहेड्रॉन के बाद में रेगुलर तो आप जानते ही हैं, इफ द ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल देन ऑल दोज 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल शेप्स आर नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। तो पॉलीहेड्रॉन वर्ड कहां से आया? पॉलीहेड्रॉन का मतलब है कि सबसे पहले आपने पॉलीगॉन्स पढ़ा और उन पॉलीगॉन से फिर ये नया चीज आया पॉलीहेड्रॉन। तो ये पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इससे डिफाइन करना चाहूंगा। ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन इज सेड टू बी ए रेगुलर if its faces are made up of a regular polygon and the same number of faces meet at each vertex। तो ये पॉलीहेड्रॉन क्या होता है कि जो भी 3 डायमेंशनल शेप डिफरेंट पॉलीगॉन से मिलके बनता है उसको हम कहते हैं पॉलीहेड्रॉन। एक बार फिर समझ लीजिए कि जब भी कोई ज्योमेट्रिकल शेप डिफरेंट पॉलीगॉन से कंबाइंड होके बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीहेड्रॉन। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का वैसे हिंदी होता है, मीनिंग होता है बहुत सारी, मैनी। पॉलीगॉन्स तो आप जानते ही हो, पॉलीगॉन्स जो बहुत सारी साइड से मिलके बनता है। तो पॉलीहेड्रॉन, हेड्रॉन का मतलब बहुत सारी साइड से मिलके बना हुआ, तो मैनी साइड से मिलके बना हुआ जो 3 डायमेंशनल शेप होता है उसको हम सॉलिड शेप होता है, शेप नहीं सॉलिड शेप, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीहेड्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें पॉलीहेड्रॉन को तो इस तरह से डिफाइन करेंगे, देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। ए पॉलीहेड्रॉन is made up different polygons, तो that is known as polyhedron। फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो पिरामिड होता है, क्यूबॉइड, कॉन, स्फीयर, दीज ऑल आर, स्फीयर को छोड़ दीजिए, स्फीयर आपका पॉलीगॉन नहीं होता है, लेकिन कॉन, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, दीज ऑल आर पॉलीहेड्रॉन, है ना। तो यहाँ पे अब ये पॉलीहेड्रॉन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रिज्म होता है, दूसरा पिरामिड होता है। तो ये प्रिज्म क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म? प्रिज्म क्या होता है? चलिए प्रिज्म के विषय में समझते हैं। प्रिज्म, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कीजिए, दिखाई देगा। हाँ, तो एक बार फिर से रोटेट करो इसको, अगर वैसे हॉरिजेंटली नहीं दिख रहा है तो वर्टिकली करो, दिखाई तो देगा ही। ये प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म आर पॉलीहेड्रा whose top and base are congruent polygons and the other faces are parallelogram। तो समझ गए होंगे ये प्रिज्म क्या होता है, एक बार फिर से बताते हैं। प्रिज्म आर पॉलीहेड्रा whose top and base are congruent। टॉप एंड बेस आर कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि जो टॉप है और जो बेस है वो एक ही तरह का होगा, सेम होगा, सेम साइज का होगा, सेम शेप का होगा। पॉलीगॉन्स एंड द अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम, और जो बाकी के फेस होंगे साइड पे लगे हुए वो आपके पैरेललोग्राम होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम 3D शेप को प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के कैसे लिखेंगे? प्रिज्म आर पॉलीहेड्रा
whose top and base are congruent. कॉन्ग्रेंट क्या कॉन्ग्रेंट पॉलीगॉन्स एंड द अदर फेसिस आर पैरेललोग्राम। एग्जाम्पल अगर हम इसका दे दें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका जो क्यूब और क्यूबॉइड है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, क्यूब और क्यूबॉइड। आप देखिए क्यूब में और क्यूबॉइड में जो टॉप और बेस होता है वो सेम ही होता है, सेम का मतलब कॉन्ग्रेंट होता है। और क्यूबॉइड में भी वही चीज होती है, अगर टॉप और बॉटम को आप देखेंगे दे विल बी कॉन्ग्रेंट, है ना। और जो आपके साइड फेसेस होंगे वो सभी पैरेललोग्राम होंगे। पैरेललोग्राम आप समझते हो, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रिज्म के। अब दूसरा चीज आती है पिरामिड। ये पिरामिड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई पिरामिड? यस, पिरामिड आर पॉलीहेड्रा। ये भी पॉलीहेड्रा होता है। तो मैंने बताया ना, जो पहले पॉलीहेड्रॉन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्रिज्म और पिरामिड, है ना। तो यहाँ पे प्रिज्म तो हम समझ गए कि प्रिज्म क्या होता है, क्यूब प्रिज्म है, क्यूबॉइड भी प्रिज्म है। अब ये पिरामिड क्या होता है? पिरामिड आर ऑल्सो ए पॉलीहेड्रा। पिरामिड आर polyhedra with a polygon at its base and all other faces are as triangle, faces as triangle, meeting in a common vertex. ये तो यहाँ पे ये चीज हो गई कि एक बार समझिएगा कि पिरामिड क्या होता है। पिरामिड आर पॉलीहेड्रा, ये भी एक पॉलीहेड्रा विथ ए पॉलीगॉन एट इट बेस एंड अदर फेसेस एज ट्राइंगल्स मीटिंग इन ए कॉमन वर्टेक्स। तो आपने देखा होगा कि जो टेबल पर जो कांच का मतलब ग्लासेस जो बने होते हैं, ग्लासेस के ऑफिसर्स के टेबल पे रखे होते हैं, वो इस टाइप के ही कुछ थिंग्स होते हैं जिसमें प्रिज्म भी हो सकता है और ये पिरामिड भी हो सकता है। तो पिरामिड का मतलब ये हुआ कि उसका बेस कुछ भी हो सकता है, बेस स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, लेकिन जो अदर फेसेस हैं, जो साइड पे फेसेस लगे रहते हैं, वो आपके ट्राइंगल ही होंगे। तो इस तरह के जो ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं वो सभी आपके पिरामिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक यहाँ पे पिक्चर शो करूं तो आप देख सकते हैं दिस इज ए पिरामिड। ये आपका एक पिरामिड है। यहाँ पे आप देखिए इसका जो बेस है वो आपका स्क्वायर है और इधर में आप देखिए जो साइड फेसेस हैं दे ऑल आर ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल हैज ए कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स। ये आपका कॉमन वर्टेक्स है। इस कॉमन वर्टेक्स के ये सभी ट्राइंगल्स ज्वाइंट होते हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल प्रिज्म का है। दिस इज ए प्रिज्म, सॉरी पिरामिड, एंड दिस वन इज ए प्रिज्म। यू कैन से हियर टॉप एंड बॉटम,
दे आर कॉन्ग्रेंट एंड अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम। तो ये आपका पिरामिड प्रिज्म हो जाएगा और ये आपका पिरामिड हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी शेप होंगे जिसमें साइड फेसेस ट्राइंगल होंगे और बॉटम फेस कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे हम ज्योमेट्रिकल सॉलिड शेप्स को पिरामिड कहेंगे और ये आपका प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है। सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, वो रेगुलर भी हो सकता है और डिफरेंट साइड का भी हो सकता है। तो ये चीज हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो प्रिज्म है, अब आप देखिए यहाँ पे कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के साइड्स होंगे। तो वहाँ पे वो आपका इरेगुलर्स होंगे, सभी सभी इरेगुलर पॉलीहेड्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट वन कि आपने पॉलीहेड्रॉन समझ लिया, प्रिज्म समझ लिया। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जो मैंने अभी आपको शो किया था। इसको बनाएं अगर तो इसको ऐसे बना सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, इस तरह से एक स्क्वायर बना लेते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ये स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर बनाने के बाद अब हम यहाँ पे एक वर्टेक्स ले लिया और इस वर्टेक्स से हमने इसको सभी को ज्वाइन कर दिया। जो तो ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर पार्ट है, ये ट्रायंगुलर पार्ट है, ये भी ट्रायंगुलर पार्ट है, इसके अपोजिट में भी ट्रायंगुलर पार्ट होगा। और ये जो ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल भी हो सकता है। सो दिस इज ए पिरामिड। तो ये यहाँ पे पिरामिड हो जाएगा। और प्रिज्म तो क्यूब और क्यूबॉइड होते हैं, तो वो आपका अच्छा एग्जाम्पल है प्रिज्म का। तो ये बात हो गई। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आइलर फॉर्मूला। आइलर दिस इज ए मैथमेटिशियन। ही गिव्स ए कॉन्सेप्ट to verify its face, vertex and edges means sides। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको हम कहते हैं आइलर फॉर्मूला। उनका नाम जो मैथमेटिशियन थे आइलर था, तो उनके नाम पे ही इसे हम जानते हैं आइलर फॉर्मूले के नाम से। तो ये आइलर फॉर्मूला this is f plus v minus e equal to 2, where f equal to number of faces, v equal to vertex and e equal to edges, that is sides। ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं वर्टिसेस। इसको वर्टेक्स की जगह वर्टिसेस कर दीजिएगा, क्योंकि कई सारे वर्टिसेस हो सकते हैं। तो अगर किसी भी थ्री डायमेंशनल शेप में फेसेस, वर्टेक्स और एजेस आपको पता है, तो आइलर फॉर्मूला इसको वेरीफाई करेगा। तो फॉर एग्जांपल फॉर क्यूब आप पूछिए। नहीं होगा नहीं, ये ऐसे ही फॉर्मूला यही होता होता होगा नहीं। इसे आप कर सकते हो, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू।
तो ये कहां से आया, ई को ट्रांसपोज कर दिया, तो ई को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू, है ना। मेन फॉर्मूला आयलर ने यही दिया था, एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू टू, मीन्स the number of faces, number of vertices and the number of its just connected with a common value with a constant value 2, मतलब इस सभी का डिफरेंस और एडिशन एक कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है, वो होता है 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, let us say cuboid, and you know that number of side means edges of cuboid कितनी होती हैं, 12, और नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, दिस इज 6, और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं, दीज आर 8। तो इस तरह से अगर आप किसी क्यूबॉइड में अच्छे से जानते हो कि उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और कितनी साइड्स होते हैं, तो टोटल साइड्स 12 होते हैं और वर्टिसेस 8 होते हैं, तो ये सभी चीज आयलर फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे। देयरफॉर बाय आयलर फॉर्मूला you can verify it, since f plus b minus e equal to 2, therefore you can take left hand side for it, आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, since f plus b minus e, this is f means this is f, v means this is vertex and this is its, so put the all values, v means f means here 6, you will put, and vertex means this is 8 and is mean this is 12, so on simplifying 8 plus 6 means 14 minus 12 means you will get always 2, तो 2 आपका क्या है, 2 आपका राइट हैंड साइड है, आप देख सकते हो यहाँ पे आयलर फॉर्मूले में ये दिस इज 2, तो ऑलवेज यू विल गेट 2 हियर। अगर आपको यहाँ 2 मिल जाता है तो आप लिख सकते हो, ये आपने कौन सा साइड लिया था, लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, राइट हैंड, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आप किसी भी सॉलिड शेप्स के लिए आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये किसी भी 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप में ये वेरीफाई होता है। अगर यहाँ पे वेरीफाई नहीं होता है, एक बार और नीचे, हाँ एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले ये मेन समझने की चीज है, व्हाट इज द आयलर फॉर्मूला, दिस इज एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2, एंड हियर एफ मींस दीज आर फेसेस ऑफ दैट सॉलिड शेप, वी मींस वर्टिसेस, वर्टिसेस मींस उसके जो कॉर्नर होते हैं, और ई मींस इडिस मींस साइड्स, ई मींस इजिस जितने भी होते हैं, या फिर साइड्स कह सकते हैं। इसको आप इस फॉर्म में भी कह सकते हो, एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू, और जनरली ये फॉर्मूला ये होता है एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। तो अब आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक क्यूबॉइड ले लिया, क्यूबॉइड इज ए सॉलिड, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सॉलिड शेप ले लिया क्यूबॉइड में, और क्यूबॉइड में आप अच्छे से जानते हो कि वहां पे साइड कितनी होती हैं, साइड आपकी टोटल 12 होती हैं। आपका रूम भी होता है, क्यूबॉइडल रूम होता है, आप क्यूबॉइड में अपने रूम में साइड काउंट कर सकते हो, तो टोटल साइड 12 होती हैं, फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं,
और जो वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स, वो आपके 8 होते हैं। आप काउंट करके देख सकते हो आपके रूम में कितने कॉर्नर्स हैं। तो वो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो वो क्यूबॉइडल रूम होता है। अब आप देखेंगे कि आइडल फॉर्मूला क्या है आपका, एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एफ बी और ई का वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब आप यहाँ एफ बी और ई का वैल्यू पुट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है आइलर फॉर्मूले का, तो आप देखा 6 प्लस 8 माइनस 12। 6 कहाँ से आया, ये 6 और 8 ये वर्टिसेस है, तो यहाँ पुट कर दिया। और ई कितना है, 12 है, तो 12 पुट कर दिया। 6 प्लस 8 कितना होता है, 14। 14 में से 12 माइनस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ये 2 आ जाता है, और ये हर क्वेश्चन में 2 आएगा। तो अगर ये 2 आता है तो ये क्या है, राइट हैंड साइड है, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये अगर चीज वेरीफाई हो रही है तो इसका मतलब वो सॉलिड शेप है। और अगर यहाँ पे ये 2 नहीं आके कुछ और आ जाए, इसका मतलब इट इज नॉट ए सॉलिड शेप, इट इज नॉट ए पॉलीहेड्रॉन, ये पॉलीहेड्रॉन नहीं होगा, फिर कुछ और ही शेप होगा जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको कोई नाम दे दिया जाएगा सॉलिड का, या फिर पिक्चर दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि ये पॉलीहेड्रॉन है या नहीं है, या फिर ये आयलर फॉर्मूले को वेरीफाई करके दिखाओ। तो आप इसी तरह से वेरीफाई करेंगे, तो ये आयलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हाँ जी, हाँ इसको भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले दोनों ही है। अगर ई को ट्रांसपोज कर देंगे तो ई इधर आ जाएगा, तो लिख सकते हैं। तो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ प्लस बी। तो आप एफ प्लस बी में देखो कितना आएगा 14, और राइट हैंड में आप लिखोगे ई प्लस टू, तो ई कितना है 12, तो 12 प्लस टू कितना आएगा 14, तब भी आएगा 14 इक्वल टू 14 आ जाएगा, है ना, तो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज, मेन फॉर्मूला ये वाला सही है, एफ प्लस बी माइनस ई, है ना, मतलब एफ और बी को प्लस करना है और इजिस को वहां माइनस करना है। और ये हमेशा टू फिक्स है, टू ही हमेशा आएगा। अगर टू नहीं आता है तो आप लिखोगे इट इज नॉट वेरीफाइड। ठीक, So dear, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर